in the machine design lab, we will write the MATLAB program for the force analysis on the spur gear. What is visible? नहीं सर, वो इधर जा रहा है। मैं देख लेता हूँ आपका पार्ट मेरे तरफ से। नहीं सर, और इधर कर, बस और कर रही। यहाँ पे पूरा दिख रहा है आपको, और इधर ये जा रहा है मेरे ख्याल से सिर्फ ये अंदर आ रहा है। दिस एरिया इज विजिबल आई थिंक, जो मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है, तो दिस एरिया इज विजिबल। सो टुडेज ऑब्जेक्टिव इज force analysis MATLAB program. So we have discussed something little about the force analysis on the spur gear. So in the previous class we were discussing on simple gear train and compound gear train. So in the compound gear train, क्या पहचान है कंपाउंड गियर ट्रेन की? When there are more than one gear on a single shaft. Multiples. हाँ, there are multiple gears on a single shaft, है ना? Yes. तो फोर्स एनालिसिस से पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ था? एक ड्राइवर जिसको हम कह रहे हैं गियर नंबर 1. दिस गियर नंबर इज इन मैश विद द सेकंड गियर, है ना? दिस इज गियर नंबर 2. दे बोथ आर इन मैश. This gear is on one shaft, left shaft number A. This gear is on another shaft, left shaft number B. And on this B, there are multiple gears. So gear number 3 is also on this same shaft. So here I am making the third gear. So this is gear number 3. And this gear number 3 is in mesh with the gear number 4. And gear number 4 is on another shaft. That is shaft number C. So ABC are the shafts, 1, 2, 3, 4 are the gears. So on this we were solving a numerical, है ना? तो last class में numericals में I think power was given to us. So given data I am writing on this side. So power is given 5 kilowatt. RPM is given 720 RPM. So here there are 4 gears, 1, 2, 3, 4. So this 720 RPM is the speed of which gear? क्या consider करेंगे आप? If nothing is mentioned in the question, then this 720 will be considered the speed of the first driver. है ना? So this is the first driver, so it is rotating at 720 RPM. So N1 I am writing here, it is 720 RPM. This is the given data. Power is given, RPM is given. Also, the number of the teeth are given. Z1 is given something, Z2 is given. तो कितनी वैल्यूज थी? किसी को याद है क्या पिछले क्वेश्चन में? Anyone? Yes, anyone remember? सर KW तो सर 5 दे रखा था। हाँ, तो KW means power. So वो तो P से रिप्रेजेंट कर दिया, 5 किलोवाट लिख दीजिए, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं सर Z1 20, 120 दे रखे हैं सर Z1 20, Z2 50, very good, and Z3 30, very good, and Z4 60. 60. Nice. M is equals to 4. Module is 4. Very nice. So given data is here. Very nice. So अब देखिए, this gear is having 20 teeth. So if teeth are known to me, then I can find the diameter of this gear. So diameter is D1. है ना? So as per the definition of module, module is given by d by z. So d equal to mz. So from here I can find d1. So what is d1? d1 is mz1, m into z1. M is 4 mm, z1 is 20 teeth. So 4 into 20 it is 80 mm. ठीक है, तो हमारे पहले गियर की जो डायमेंशन है, जो पीसीडी है, पिच सर्कल डायमीटर है, वो हमारा 80 है। सो व्हाट इज द डायमीटर फॉर द सेकंड? सेम लॉजिक, mz2 है ना? दोनों गियर मैच कर रहे हैं तो उनके मॉड्यूल आपस में सेम है
है ना, तो D2 इक्वल टू M Z2, M is 4, Z2 is 50, 50 into 4 it is 200 mm. So D2 is 20 and 200 mm. What is D3? है ना, मॉड्यूल इज कॉमन, मॉड्यूल इज सेम फॉर ऑल द गियर्स. क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि मॉड्यूल इज सेम फॉर ऑल द 4 गियर्स. क्वेश्चन में एक लाइन है, सो दैट्स व्हाई मॉड्यूल इज 4 हियर आल्सो, मॉड्यूल इज 4 हियर आल्सो. ठीक है, और ये तो मैश में है तो इनका अलग हो भी नहीं सकता है. इन दोनों का अलग हो सकता है, इन दोनों का अलग हो सकता है, ऐसा तो पॉसिबल है, बट क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि मॉड्यूल इज कॉमन फॉर ऑल द गियर्स. सो m is 4 and 4 multiplied by Z3, Z3 is 30, 30 into 4 is 120. So the diameter of this gear is 120, and what is the diameter of D4? 60. How much Z4? 60. 60 into 4 is 240. So we are having all the diameters, all the number of teeth on all the gears, diameter of all the gears. Power is 5 kilowatt. So power is 5 kilowatt on which gear? 5 kilowatt power कहाँ पर है ना? So 5 kilowatt power will be considered at the driver part. Nothing is mentioned in question. So it is rotating at 720 RPM and the power is 5 kilowatt here. So what is the power here, here and here? बताइए क्या होगा? What will be the power distribution in this compound gear? Anyone? You know already that there are certain power losses. है ना? तो पावर लॉस क्या होता है? ड्यू टू फ्रिक्शन. ड्यू टू फ्रिक्शन देयर इज सम पावर लॉस. होगा कि नहीं होगा? तो बताइए कितनी पावर पहुंचेगी यहाँ पर? 5 से लेके यहाँ तक कितना पावर पहुंचेगा? एनीवन? सर्टेनली कुछ पावर लॉस तो होगा, है ना, बट इन स्पर गियर्स देयर इज अ रोलिंग फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन किस तरह का है? फ्रिक्शन इज रोलिंग इन नेचर, एंड फ्रॉम द प्रीवियस नॉलेज यू ऑलरेडी नो दैट द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर द रोलिंग इज वेरी वेरी स्मॉल. जिसको हम u बोलते हैं ना, u इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. तो इट इज वेरी वेरी स्मॉल and the value is around 0.000 something. ठीक है, so rolling friction is very very less. That's why the heat generation part will be very less, so the power loss will be very very less, है ना? So there will be power loss is very small. That's why we are neglecting the power loss in our question, है ना? So generally in the design of the spur gear, power loss is generally neglected. So 5 kilowatt power is here, 5 kilowatt power transferred to this gear, from this gear to this shaft B, then B to this gear, so power is same all the places. In the whole process, the power is 5 kilowatt. At 1 also, 2 also, 3 also, 4 also. ठीक है, एक बात तो ये, power loss is same. Now what is torque? तो इस गियर पर कितना टॉर्क है? तो टॉर्क निकालने के लिए I can see I am having a very generalized formula, 60 10 to the power 6 multiplied by power, है ना, kilowatt divided by 2 pi n. So this is 60 10 to the power 6, power is given 5 kilowatt, 2 pi into n. N is the RPM, so RPM is given 720. Please solve it. कितना आ रहा है मुझे बताइए. कोई भी एक चलो रिस्पॉन्ड करते रहिए. What is the value coming over here after solving this? अपने अपने कैलकुलेटर उठाइए और बताइए. 60 10 to the power 6 into 5 divided by 2 pi multiplied by 720. मेरा आंसर आ रहा है 66314.55. The unit is Newton mm. Please cross check. क्या ये डायमेंशन आ रही है आपकी? ये वैल्यू आ रही है? 66,314.55 is the torque on the gear number 1. So I can say this is MT1 because I am working on gear number 1. So this is the torque on gear number 1. अरे क्या लिखा है? NT1. MT1 है ना? MT is the torque, है ना? M for movement, T for torque, है ना? Digit twisting movement. That's why I am writing MT1. है ना? 1 is the suffix for the gear. When I will work on gear number 2, I will write MT2. For 3, I will write MT3 and so on. So, is this value is correct? 66,314.55 Newton mm. Just yes no बोल दीजिए.
कोई भी एक जना कैलकुलेटर आप साथ रख के बैठे, जब भी मैं एमडी की थ्योरी क्लास हो या लैब क्लास हो, पुट ए कैलकुलेटर विद यू ऑलवेज। चलिए मैं इसको सही मान लेता हूं, है ना। सो 66,314 हमारा न्यूटन एमएम, ये हमारा टॉर्क है। ठीक है, यूनिट हमेशा न्यूटन एमएम में मिलेगी इफ यू आर यूजिंग पावर इन किलोवाट एंड एन इन आरपीएम। इस 10⁻⁶ फैक्टर की वजह से यूनिट हमेशा आपकी एन न्यूटन एमएम आएगी। ठीक है, नाउ टॉर्क इज 66,314 हियर। व्हाट इज द टॉर्क एट गियर नंबर 2, व्हाट इज द टॉर्क एट गियर नंबर 3, व्हाट इज द टॉर्क एट गियर नंबर 4? क्या सेम रहेगा सब जगह? यस सर। नो सर लेकिन टॉर्क विल नॉट बी सेम, यही समझना है ना, टॉर्क विल नॉट बी सेम। देखो टॉर्क का एक तो ये फॉर्मूला है, और टॉर्क का एक बहुत ही जनरलाइज्ड फॉर्मूला है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। सो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। सो व्हाट इज द डिस्टेंस? देखो गियर है, गियर का एक सेंटर है, सेंटर से रेडियस पार्ट है, रेडियस इज d/2 and this is the pitch point, and at this pitch point the force is coming over here, and this force is pt, tangential force. In the previous class we have discussed the component of the forces. So one component is tangential and another component is radial. ठीक है, यहाँ पे दो फोर्स आ रहा है, एक पी आर आ रहा है और एक पीटी आ रहा है। तो पी आर को सेंटर से पास हो रहा है, पी आर इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द गियर, सो द मूवमेंट ड्यू टू दिस गियर, द टॉर्क ड्यू टू दिस फोर्स विल बी जीरो, because the distance is zero, because it is passing through the center of the gear. But the force pt is perpendicular to radius, so force multiplied by this radius will give you the torque. So torque is given by pt multiplied by d/2. So I can write it pt into d/2. This is the definition of the torque. ठीक है, मतलब सर ये डायमीटर पे डिपेंड करेगी? yes, torque always depends on the diameter, है ना। इन हियर स्क्वायर गियर टर्मिनोलॉजी, द टॉर्क विल ऑलवेज डिपेंड ऑन द डायमीटर। तो अब देखिए डायमीटर किसका कम है, किसका डायमीटर ज्यादा है। इसका डायमीटर 80 mm है, इसका डायमीटर 200 mm है, तो नेचुरली इसका टॉर्क ज्यादा होगा, ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो देखो टॉर्क दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो डायमीटर पे डिपेंड करता है और एक फोर्स पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब इन दोनों गियर आपस में क्या है, मैश कर रहे हैं, बोथ गियर्स आर इन मैश। तो मैच होने की वजह से जितना टेंजेंशियल फोर्स गियर 1 पर लगेगा उतना ही टेंजेंशियल फोर्स गियर 2 पर भी लगेगा। यदि आपने मेरी पिछली थ्योरी क्लास देखी हो तो उस थ्योरी क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था कि दोनों पर एक्शन और रिएक्शन होती है। ठीक है, पिनियन गियर पे फोर्स लगाता है, गियर पिनियन पे फोर्स लगाता है। तो जितना pt1 टेंजेंशियल फोर्स गियर 1 पे होगा उतना ही टेंजेंशियल फोर्स गियर 2 पे होगा। मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है, एक एक्शन होती है तो दूसरी रिएक्शन होती है। तो इस हमारे केस में pt1 pt इज कॉमन। यदि 1 और 2 की बात करें, गियर 1 और गियर 2 की, तो दोनों के टेंजेंशियल फोर्स तो कॉमन है, मैग्नीट्यूड बराबर है, तो जिसका डायमीटर ज्यादा उसका टॉर्क ज्यादा। ठीक है, तो नेचुरली टॉर्क विल चेंज थ्रू आउट द प्रोसेस, टॉर्क बदलेगा। ठीक है, अब मुझे बताओ गियर 2 का टॉर्क ज्यादा होगा या गियर 3 का टॉर्क ज्यादा होगा, बताओ कॉमन सेंस। 2 का सर, आपके पे तो टॉर्क तो सेम ही रहेगा, 2 का ज्यादा होगा। हाँ, अपना अपना जवाब दीजिए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, वी आर लर्निंग जस्ट। देखो गियर 2 में तो वेरी मच क्लियर, तो बिकॉज़ द डायमीटर ऑफ द गियर 2 इज 4, दैट्स व्हाई द टॉर्क ऑन द गियर 2 विल बी मोर। ठीक है, अब इस पे आ जाओ, सर टॉर्क सेम रहेगा गियर 2 और गियर 3 पे बात करें। अच्छा आरपीएम की बात करें, मान लो कि यहाँ पे 720 आरपीएम है पहले गियर पे, तो ये कितनी आरपीएम से घूम रहा है गियर 2, है ना। फॉर फाइंडिंग द आरपीएम यू आर हैविंग वेरी जनरलाइज्ड फार्मूला n1 by n2 इक्वल टू z2 by z1। ये फार्मूला हमने पिछली क्लास में प्रूफ भी किया था। n1 by n2 is given by z2 by z1. So in our case n1 is 720, n2 is unknown. What is z2? Z2 is the number of teeth, so it is given 50. And what is z1? Z1 is given 30, 20. Z1 is given 20, so it is 20. इसको solve करिए और n2 की वैल्यू बताइए कितनी आती है। Please solve it.
कौन कौन है मेरे साथ पार्टिसिपेंट्स? 19 पार्टिसिपेंट्स हैं। सतीश सिंह भी हैं। सतीश सिंह सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर। इसकी वैल्यू बताइए कितनी आती है? 720 by n2 is 50 by 20, so what is n2? 288। 288, very nice. So n2 is 288 rpm. ठीक है, जब मैंने स्मॉल से रिप्रेजेंट किया है n1, तो मैं इसको भी स्मॉल में ले लेता हूं। दिस कैपिटल n1 is n1, this is small n2 and this is small n2, so this is small, है ना? rpm के लिए I am taking small abbreviation. So small n1, small n2, small n3, small n4 will represent the rpm of different gears. तो देखो ये तो 720 की rpm से घूम रहा है, ये 280 288 की rpm से घूम रहा है, मतलब इसके रिवॉल्यूशंस कम है। इसके रिवॉल्यूशन ज्यादा होंगे, इसके रिवॉल्यूशंस कम होंगे इन ए गिवन पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, अब देखो इसकी आरपीएम 288 है, तो इसकी आरपीएम कितनी हुई गियर 3 की? एनीवन? सर सेम सेम होगी, क्योंकि गियर 2 और गियर 3 सेम शाफ्ट पर है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ये दोनों अलग अलग आरपीएम से रोटेट करें। जितनी आरपीएम से ये रोटेट करेगा उतनी आरपीएम से ये रोटेट करेगा। इसकी 288, इसकी भी 288 हो जाएगी। तो n3 will also be 288। ठीक है, अब n4 को आप निकाल सकते हैं अगेन बाय यूजिंग द सेम लॉजिक। n3 by n4 equal to z4 by z3। n3 by n4 equal to z4 by z3। तो बताइए जरा n4 कितना आएगा? एनीवन? n3 by n4 is z4 by z3. What is n3? 288. n4 is unknown. Z4 is given 60. Z3 is given 30. So it is 60 by 30. कितना आया बताइए? सतीश बताते रहेंगे। 144। ठीक है, तो आरपीएम तो हमारी क्लियर हो गई, 720, 288, 288, 144। ठीक है, अब आ जाओ टॉर्क के बारे में। टॉर्क एज कितना? अभी हमने निकाला 66,314 हियर। यहां पे टॉर्क कितना होगा? यहां टॉर्क कितना होगा? यहां टॉर्क कितना होगा? ठीक है, कर सकते हैं आप लोग, चारों का टॉर्क बता सकता है कोई? टेक 1 minute 0 सेशन। मैं इसे रब कर दूं जरा। हैव यू नोटेड? Because the visual part is very small, so either you take the pic, I will rub it, है ना? You take a screenshot if you want. अब देखो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव है फोर्स एनालिसिस। हमको ये जानना है कि इस गियर पे कितना फोर्स आ रहा है, इस गियर पे कितना फोर्स आ रहा है, इस गियर पे कितना फोर्स आ रहा है, इस गियर पे कितना फोर्स आ रहा है ना? क्योंकि डिजाइन करने के लिए फोर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। फोर्स एनालिसिस इज द इन बिटवीन पार्ट ऑफ द डिजाइन। ठीक है, उस फोर्स एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही हमें सारी चीज डिसाइड करनी है। मटेरियल क्या होना चाहिए, है ना? स्ट्रेस क्या जनरेट हो रहा है, टीथ की सेफ डिजाइन करनी है ना? तो दैट्स व्हाई फोर्स एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जरा सा टॉर्क के लिए 1 मिनट का 0 सेशन है, आप लोग सॉल्व करके बताइए। हाँ हाँ
हाँ, क्या कोई किसी का टॉर्क निकला क्या सभी का? चलिए टॉर्क को अभी हम एक तरफ रखते हैं ना, टॉर्क की यहाँ में जरूरत पड़ेगी, वी विल डू इट ना। टॉर्क निकालना बहुत आसान है, टॉर्क का तो कुछ भी नहीं है, टॉर्क के लिए फॉर्मूला है आपके पास, आप सभी कर सकते हैं, 10⁻⁶ किलोवाट डिवाइडेड बाय 2 पाई है, ये तो फॉर्मूला है टॉर्क का। जब हमने इस गियर का टॉर्क निकाला तो आरपीएम की वैल्यू कितनी थी? 720 पावर 5, बाकी तो सब कांस्टेंट है। तो टॉर्क डिपेंड्स ऑन पावर एंड आरपीएम। इसकी पावर 5, आरपीएम 720, इसकी पावर 5, आरपीएम 288, इसकी पावर 5, आरपीएम 288, इसकी पावर 5, आरपीएम 144। तो डाटा है ना आपके पास, तो व्हेन यू आर हैविंग द डाटा यू कैन फाइंड द टॉर्क, नो इश्यू। ठीक है, अब देखो दोनों की आरपीएम इक्वल है, दोनों की पावर इक्वल है, तो इन दोनों गियर्स का टॉर्क बराबर ही होगा, और एक शाफ्ट में दो गियर है तो उनकी टॉर्क बराबर ही होगी। ठीक है, तो mt2 विल बी इक्वल टू mt3। तो मेरे ख्याल से आप चारों टॉर्क निकाल सकते हैं, नो इश्यू, बिकॉज यू आर हैविंग द फॉर्मूला। ठीक है, चलिए अब आप पहले गियर का टॉर्क निकाल चुके हैं, कितना टॉर्क आया था? 66,314। सो mt1 इज 66,314, पॉइंट कितना था सतीश? यूनिट इज न्यूटन 155 तो हमारे पास टॉर्क अवेलेबल है। अब हम आते हैं फोर्स पे। अब देखो टॉर्क का एक और फॉर्मूला है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। टॉर्क के दो फॉर्मूले हैं, एक फोर्स इनटू डिस्टेंस है और एक 60×10⁶ किलोवाट डिवाइड बाय 2 पाई है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इस फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो Pt1 इज गिवन बाय 2 टाइम्स mt1 डिवाइडेड बाय d1। जब हम पहले गियर पे बात कर रहे हैं तो डायमीटर पहले गियर का लेंगे, सो इट इज d1। अब देखिए mt1 हमारा 66,314.15 डिवाइडेड बाय d1। अब d1 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 80 mm, mz1 के फॉर्मूले से, मॉड्यूल इनटू नंबर ऑफ टी, सो इट इज 80। जरा इसको सॉल्व करेंगे, कितना फोर्स आया? 66,314 डिवाइड बाय 40 कर दीजिए, ये 40 हो गया, डिवाइड बाय 40 कितना? सतीश बताते रहिए। देखिए मैं कर लेता हूँ, 66,314.15 डिवाइडेड बाय 40, सो द आंसर इज 1657.8। 1657.8 है ना, 2 डिजिट तक ले लेते हैं, इट इज 85। What is the unit? Newton. So PT1 is this value. ठीक है, once we know the tangential force we can find the radial force. So radial force is given by PT1 tangent of alpha, where alpha is the pressure angle. Alpha is the pressure angle, it is the angle between the tangent and the line of action of the force. So alpha is given in our question, कितना दे रखा है क्वेश्चन में बताइए, क्वेश्चन एक बार आपके सामने पढ़ लो। व्हाट इज अल्फा? A train of spur gears, gear 1 is the driving gear, transmits 5 kilowatt power at 720 rpm, number of the teeth are so and so, the module is 4 mm, gears have a 20-degree full depth involute profile. इस लाइन पे ध्यान दीजिए, the gears have a 20-degree full depth involute profile। 20 डिग्री इन्वॉल्व है ना, प्रोफाइल जो है प्रेशर एंगल के हिसाब से अलग अलग होती है। तो गियर की डिजाइन में कई प्रोफाइल चलती हैं, जैसे अल्फा यदि प्रेशर एंगल है तो अल्फा इक्वल टू 14.5 डिग्री, 14.5 डिग्री वाली प्रोफाइल, अल्फा इक्वल टू 20 डिग्री प्रोफाइल है ना। भाई अल्फा होती है 20 डिग्री ही होता है, लेकिन वो कहलाता है स्टब टीथ। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टब टीथ। ठीक है, अब स्टब टीथ का क्या मतलब होता है? स्टब टीथ का ये मतलब होता है कि मान लीजिए ये टीथ की हाइट है, so this is the height of the teeth। ठीक है, अब यहां पर फोर्स आ रहा है, तो फोर्स डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द टूथ, टूथ की हाइट पर फोर्स डिपेंड करता है। ठीक है, मूवमेंट क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। तो यदि हम इस हाइट को थोड़ा सा रिड्यूस कर दें, टूथ की हाइट को थोड़ा सा रिड्यूस कर दें, तो हमारा बेंडिंग मूवमेंट रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है,
तो स्टब टीथ में हम क्या करते हैं, टूथ की हाइट को ऊपर से हल्का सा ऐसे क्राउनिंग कर देते हैं, है ना। और उसके भी रीजंस होते हैं कि क्राउनिंग क्यों करनी पड़ रही है, कहीं पे स्पेस कम है, टूथ उतना लंबा टूथ आ नहीं सकता, तो हम टूथ की क्राउनिंग कर देते हैं। क्राउनिंग करने से क्या होता है, एक फायदा ये मिलता है कि उसकी हाइट कम हो गई, हाइट कम होने से बेंडिंग मोमेंट कम हो गया, बेंडिंग मोमेंट कम होने से बेंडिंग स्ट्रेस कम जनरेट हुआ, और बेंडिंग स्ट्रेस कम जनरेट होने से टूथ की स्ट्रेंथ बढ़ गई। ठीक है, तो 20 डिग्री फुल डेप्थ की कंपैरिजन में 20 डिग्री स्टब टीथ जो होते हैं वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो जनरली गियर डिजाइन में 3 प्रोफाइल होती हैं, एक 14.5 डिग्री वाली, एक 20 डिग्री वाली, एक 20 डिग्री स्टब टीथ वाली। हर प्रोफाइल का एक दूसरे पर कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो उसको तो हम डिस्कस करेंगे थ्योरी क्लास। लेकिन अभी फिलहाल हमारे क्वेश्चन में फोर्स एनालिसिस की पार्ट पर जो प्रेशर एंगल है वो 20 डिग्री दे रखा है। सो अल्फा इज गिवन 20 डिग्री। तो यहां पर PT1 की वैल्यू 1657.85 टेंजेंट ऑफ 20। इसको सॉल्व करने जरा कितना आता है, तो आपको रेडियल फोर्स मिलेगा, मल्टीप्लाई करके बताइए जरा। शाहरुख खान भी इसी क्लास में है क्या? जी सर। सर हाँ, सर बताइए अल्फा शाहरुख कितना कितना था? आ रहा है? शाहरुख बताएं या सगुन भारद्वाज, कोई भी जवाब दीजिए। PR1 कितना आ रहा है? टेंजेंट 20 से गुणा कर दीजिए। क्या आपके पास कैलकुलेटर्स नहीं है? देखिए मैं तो कैलकुलेटर रखता हूं, इंटू 10 20, इट इज कमिंग 603.41। तो PR1 603.41 न्यूटन, ये हमारा रेडियल कंपोनेंट आ गया फोर्स का, और जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो हमारा आया 1657.85। सर अल्फा 28 है सर। नहीं 20 इट इज नॉट 28, अल्फा इज 20 Okay, डिग्री, 20 डिग्री है ना। यस, सो 603.41 न्यूटन एंड दिस इज 1657.81 न्यूटन। तो गियर 1 की फोर्स एनालिसिस कंप्लीट हो गई। गियर 1 पर कितना फोर्स कंपोनेंट आ रहा है ये हमने फाइंड कर लिया, उस पर टेंजेंशियल इतना आ रहा है, रेडियल इतना आ रहा है, तो फिर इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए कैसे करोगे, अंडर रूट PT1 स्क्वायर प्लस PR1 और कर दीजिए कितना, ये दोनों जो फोर्स कंपोनेंट हैं ये आपस में परपेंडिकुलर है ना। तो जब परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट ऐसे मिलता है, PT1 स्क्वायर प्लस PR1 स्क्वायर। कितना आ रहा है शगुन भारद्वाज, आप बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट? रुवैद खान सुन पा रहे हैं मुझे? प्रिंस चौधरी, सतीश सिंह? यस सतीश सिंह आपके पास कैलकुलेटर है? नो सर, रूम पे छूट गया। चलिए चलिए मैं कर देता हूँ, नो इशू, बता दीजिए मुझे ना। 1657.85 मोबाइल में भी है कैलकुलेटर, वहां भी यूज कर सकते हैं, स्क्वायर प्लस 603.41 स्क्वायर इक्वल टू रूट आंसर। सो द वैल्यू इज कमिंग 764.25। ठीक है, अब देखो गियर 1 जो कि हमारा ड्राइवर है वो गियर 2 पर इतना फोर्स लगा रहा है, जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स है उस डायरेक्शन में ये रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है 1764 का, गियर 1 गियर 2 पर। तो ये तो हुआ एक्शन पार्ट, उतना ही फोर्स गियर 2 गियर 1 पे भी लगा रहा है एज ए रिएक्शन पार्ट। ठीक है, तो ये एक्शन हुई गियर 1 के द्वारा गियर 2 पर, गियर 2 ने गियर 1 पर रिएक्शन दिया और इतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में गियर 2 गियर 1 पे लगा है। ठीक है, तो फोर्स की मैग्नीट्यूड सेम होगी। तो गियर 2 गियर 1 पे टेंजेंशियल कंपोनेंट इतना ही आएगा, रेडियल कंपोनेंट भी इतना ही आएगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन भर अपोजिट होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो गियर 2 की फोर्स एनालिसिस कंप्लीट होती है, PT2 भी इतना ही आ जाएगा 1657.85 न्यूटन, और PR2 जो रेडियल कंपोनेंट है वो भी इतना ही आ जाएगा 603.41।
है, तो 2 गियर का हम फोर्स एनालिसिस कर चुके हैं। कोई डाउट तो नहीं यहाँ पर? वेरी मच क्लियर। PT1 इक्वल टू PT2, मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल, डायरेक्शन विल बी अपोजिट, डायरेक्शन विल बी अपोजिट। इसको जरा फ्री बॉडी डायग्राम से भी समझा देते हैं आपको। तो देखिए गियर 1 और गियर 2 का मैं जरा सा फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, ठीक है। आई एम मेकिंग द फ्री बॉडी डायग्राम, यहां बनाता हूं, देखिएगा जरा। गियर 1, दिस इज गियर 1, दिस इज गियर 2, दोनों मैच में हैं। मैंने इनको डिटैच कर दिया, डिटैच करने से इनके बीच कुछ डिस्टेंस बन गई। सो दिस इज द पिच पॉइंट, दिस इज द पिच पॉइंट इज कॉमन टू बोथ द गियर्स। दिस इज सेंटर 1, this is center 2. Now at this pitch point there is a tangential component. तो बताओ ये गियर क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है? एनीवन? इस गियर की रोटेशन कैसी है? इट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? आई थिंक नथिंग इज गिवन इन क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेंगे, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है। तो जो डायग्राम दिया है उसमें भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि किधर रोटेट हो रहा है ना। तो वी विल अज्यूम कि ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। हम एंटी क्लॉकवाइज भी अज्यूम कर सकते हैं, उससे हमारे फाइनल फोर्स एनालिसिस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो हमने ये अज्यूम कर लिया कि ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, और जब ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो ये वाला गियर कैसे रोटेट होगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। यदि हम इसको एंटी क्लॉकवाइज अज्यूम करेंगे तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखिए ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो यहाँ पर ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, ये किसकी वजह से रोटेट हो रहा है? PT1 की वजह से रोटेट हो रहा है। तो PT1 की डायरेक्शन आपको मिल गई, PT1 की वजह से ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। यदि आपने एंटी क्लॉकवाइज अज्यूम किया होता तो PT1 की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती। तो अभी आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में दिखाया PT1, ठीक है। जब गियर 1 में PT1 की ये डायरेक्शन है तो गियर 2 में PT2 की डायरेक्शन अपोजिट होगी। मैग्नीट्यूड विल बी सेम, डायरेक्शन विल बी अपोजिट। ये भी 1657 का है, 17 कितने का है? 1657। ये भी 1657 न्यूटन है, ये भी 1657 न्यूटन है, डायरेक्शन इज अपोजिट। सिमिलरली the radial component always act towards the center of the gear. So this is the radial component PR1, ये अपने सेंटर की ओर काम करेगा, और इसका जो रेडियल कंपोनेंट है वो अपने सेंटर की ओर काम करेगा, ठीक है। और PR1 की वैल्यू कितनी आ गई है? 603 न्यूटन इस गियर के लिए, 603 न्यूटन इस गियर के लिए। मैग्नीट्यूड विल बी सेम, डायरेक्शन विल बी अपोजिट। सो वी हैव डन द फोर्स एनालिसिस ऑफ गियर 1 and 2 बोथ। मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट आपको नहीं होगी। हमने दोनों की वैल्यूज निकाल ली, मैग्नीट्यूड निकाल दिया, डायरेक्शन भी निकाल दिया, एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ अस। अब हमें कहां जाना है? अब हमें गियर 3 और गियर 4 पे जाना है। तो क्या अब आप गियर 3 और गियर 4 की फोर्स एनालिसिस कर सकते हैं इन द सिमिलर फैशन? यस सर। यस सर। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। तो चलिए गियर 3 और 4 की फोर्स एनालिसिस करते हैं, है ना। मैं इसको रब कर रहा हूं फिलहाल। अब देखिए ये जो मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था, ये मैंने बनाया था गियर 1 और गियर 2 का। सिमिलरली आप गियर 3 और गियर 4 का फ्री बॉडी बना सकते हैं। सो दिस इज गियर नंबर 3, दिस इज गियर नंबर 4, दिस इज सेंटर O3, दिस इज सेंटर O4। अब बताओ इस गियर की डायरेक्शन क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? गियर नंबर 3 सर वो तो 2 के सेम होगी। हाँ देखो ये हमने क्लॉकवाइज अज्यूम किया, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये और ये एक ही साथ पर हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ये भी एंटी क्लॉकवाइज होगा। वेरी गुड। सो दिस इज आल्सो एंटी क्लॉकवाइज, एंड इफ दिस इज एंटी और की सर क्लॉकवाइज, then it is will be clockwise. Very good. अब देखो this is the pitch point, this is the pitch point. अब यहाँ पर PT3 का डायरेक्शन क्या होगा? फॉरवर्ड या बैकवर्ड? बताइए। बैकवर्ड। बैकवर्ड। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की वजह से दिस इज बैकवर्ड, और ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी? जस्ट इसका अपोजिट। PT3 and PT4 will be equal in magnitude but opposite in direction. So PT3, PT4 clear. Similarly, PR3 will act towards the center of the gear. So this is PR3 and this is PR4. PR3 and PR4 will also be equal in magnitude but opposite in direction. तो बस अब आपको क्या करना है? वैल्यूज निकालनी है। PT3 की वैल्यू निकालनी है, PR3 की वैल्यू निकालनी है।
हो गई फोर्स एनालिसिस। तो चलिए PT3 PR3 कैसे निकालें, बताओ कौन बताएगा? बहुत आसान है अब तो। देखो PT3 क्या होता है, 2 टाइम्स MT3 डिवाइडेड बाय D3। D3 यही तो फॉर्मूला होता है, 2 टाइम्स MT3 डिवाइडेड बाय D3। अब MT3 का क्या फॉर्मूला है, MT3 is given by 60 10 to the power 6 किलोवाट डिवाइडेड बाय 2 pi N3। किलोवाट पावर तो 5 किलोवाट है, तो 5 रख दीजिए इसकी जगह पर। 60 10 to the power 6 multiplied by 2 pi N3। N3 की RPM कितनी है, 288। 288 है ना RPM। पहले वाली 820 थी, फिर 288 थी, फिर वो एक ही शाफ्ट पे थे, तो 288 तो है। तो 288 बस को सॉल्व करिए, MT3 आ जाएगा। MT3 के बाद D3 आपको मालूम है, देन यू कैन फाइंड PT3, वेरी इजी। सॉल्व करके बताइए, पहले MT3 बताइए। आगे से काउंटर जरूर रखिएगा अपने साथ, है ना। 60 10 to the power 6 into 5 divided by 2 pi into 288 bracket close, it is coming, कितना आ रहा है आपका, 165786 165,786.40 या 39 जो भी आ 0.39 न्यूटन है। 165786.39, दिस इज द टॉर्क। इस टॉर्क को यहां पे पुट करिए, देन यू विल हैव PT3 2 times 165,786.3 divided by D3. What is the value of D3? D3 आपने निकाला था, D3 is MZ3, M is 4, module is 4, what is the Z3? 120 Yes, 34 जा 120, very good। तो इसको हम 120 यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। चलिए सॉल्व कर दीजिए इसको। तो 2 से 60 बार 60 का डिवीजन कर देते हैं, डिवाइड बाय 60। 2763.10 वेरी गुड, यही मेरा भी है, 2763.10 न्यूटन, है ना। यूनिट के साथ बात करें तो दिस इज दिस मच ऑफ न्यूटन, बिकॉज़ दिस इज फोर्स। तो PT3 आ गया। अब PT3 जब इतना है तो PT4 भी इतना ही होगा। PT4 will also be same। अब मुझे बताइए PR3 का फॉर्मूला लगा दीजिए, PT3 टेंजेंट ऑफ अल्फा। PT3 is 2763.10 tangent of 20. Alpha is 20 given in question. Solve it. Into सर कितना है सर P3? PT3 2763.10। ठीक है, और PT4 भी सेम होगा। PT4 will be same क्योंकि 3 and 4 are in mesh, so their tangential। हमेशा याद रखो, कोई भी दो गियर आपस में मैश कर रहे हैं तो उनके टेंजेंशियल फोर्स आपस में इक्वल होंगे, केवल डायरेक्शन अपोजिट होगी। ये लर्निंग समझिए आप, है ना। यदि कोई भी दो गियर आपस में मैश कर रहे हैं, उनकी फोर्स इक्वल होंगे, डायरेक्शन अपोजिट होगी, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। सर रेडियल और रेडियल, तो वो भी टेंजेंशियल भी रेडियल भी दोनों ही फोर्स, ओके सर, है ना। दोनों के रेडियल भी इक्वल होंगे, डायरेक्शन अपोजिट होगी, और टेंजेंशियल भी इक्वल होंगे, डायरेक्शन अपोजिट होगी। सो PT3 PT4 मस्ट बी इक्वल। तो ये भी हमने 2763 इसीलिए ले लिया क्योंकि PT3 2763 है। अब PR3 हमने निकाला, टेंजेंट ऑफ 20 कर दिया, 1005.68 बहुत बढ़िया, 1005.26 न्यूटन। सो दिस इज PR3। अब PR4 बता सकते हो, सेम यस सर। डायरेक्शन भी अपोजिट। देखो PR3 का डाउनवर्ड है तो PR4 का अपवर्ड, एक एक्शन है एक रिएक्शन। तो चलिए PR4 भी हमारा निकल गया। PR4 is also 1005.26 मीटर। ठीक है, सो दिस फोर्स एनालिसिस पार्ट इज कंप्लीट, है ना। नाउ इन लैब व्हाट यू हैव टू डू, आपके पास मैटलैब है नहीं, तो आपको मैटलैब की जगह पर, मैटलैब है क्या आपके कितने लोगों के पास मैटलैब है आपके लैपटॉप में, ये बताओ। यदि नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, आई विल गिव यू द सॉल्यूशन। ऑक्टेव है सर। ऑक्टेव, वेरी गुड। तो मैटलैब एंड ऑक्टेव
फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर है ना, इसका जो भी वर्जन हो 6.3 हो 6.2 हो, जो भी लेटेस्ट होगा वो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, ऑल आर फ्री। जस्ट ऑक्टेव आप टाइप कर दीजिएगा गूगल सर्च बार में, आप उसको लोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए, और उसमें सारी कमांड्स मैटलैब की चलती है। आप ऑक्टेव में प्रोग्राम बना लेते हैं, इसका मतलब मान लीजिए आपने मैटलैब में बना दिया, टोटली सेम। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली लाइन क्या होती है, क्लियर ऑल, उसके बाद CLC। एक प्रोग्राम तो मैं बनवा चुका हूं ना आपका पहले, कौन सा प्रोग्राम बनवाया था मैंने, हेलिकल स्प्रिंग का बनवा चुका हूं ना प्रोग्राम, बिग वाला सर। बस तो उसी स्टाइल में चलना है ना। आप स्वयं ही बताते चले जाओ कैसे कैसे बनाएंगे। क्लियर ऑल CLC, उसके बाद क्या करेंगे, गिवन डाटा, परसेंटेज गिवन डाटा। परसेंटेज गिवन डाटा, वेरी गुड। तो क्या क्या डाटा गिवन है, पावर गिवन है KW 5, RPM गिवन है 720, Z1 गिवन है, कितना Z1 बताइए, वैल्यू 20 50 30 60 है ना, तो 20, उसके बाद 50, उसके बाद 30, उसके बाद 60, Z1 Z2 Z3 Z4 ये सब गिवन है क्वेश्चन में। और क्या गिवन है, मॉड्यूल 4 m इक्वल टू 4, और क्या गिवन है, अल्फा ALPH, ठीक है, लैटिन वाला अल्फा नहीं लेगा तो अल्फा अपना वेरिएबल बना लिया, ALPH अल्फा इज 20। और क्या गिवन है बताओ, एनीथिंग एल्स, जो कुछ भी होगा जितना याद आ गया हमने लिख दिया, बाकी कुछ आएगा बाद में लिख देंगे, है ना, नो इश्यू, बाद में ऐड कर देंगे। चलिए सेकंड सेक्शन, स्टेप 1, क्या करोगे स्टेप 1 में, गियर 1 और गियर 2 पे काम करते हैं ना। तो फोर्स एनालिसिस ऑफ गियर 1 एंड 2, पहले 1 और 2 पे करेंगे, फिर अगले स्टेप में 3 और 4 पे करेंगे, ठीक है, डिवीजन कर दिया। स्टेप आप अपने तरीके से बना सकते हो, जैसे भी आपको बनानी है ना, मैंने 4 स्टेप बनाए, आपके 5 हो सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टेप 1 इज फोर्स एनालिसिस ऑफ गियर 1 एंड 2। तो कैसे करेंगे फोर्स एनालिसिस, सबसे पहले हम टॉर्क निकालेंगे, सो MT1, ठीक है, MT1 है ना, वैसे जनरली हम लोग MT1 ऐसे लिखते हैं ना सफिक्स में, लेकिन मैटलैब सफिक्स में लेगा नहीं, तो आप सामने ही 1 लिख देना, नो इश्यू। सो MT1 इज गिवन बाय 60 स्टार into 10 to the power 6, तो 10 to the power 6 के लिए हम क्या लिखेंगे, E6। मैटलैब में यदि E6 लिखा हुआ है तो समझ लीजिए वो 10 to the power 6 है। और सर वैसे लिख दें सर 10 एरो लगा के 6 लिख दें, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 60 10 पावर 6, ये भी लिख सकते हैं 60 E6, ये भी लिख सकते हैं, दोनों से ही सेम आंसर आएगा, बट दिस इज मच बेटर, है ना, थोड़ा छोटा है। तो 60 E6 ये हो गया 60 10 to the power 6 मल्टीप्लाई किलोवाट, किलोवाट आ गया। किलोवाट वो कहां से उठा लेगा, गिवन डाटा से, गिवन डाटा में वैल्यू कितनी है 5, तो ये किलोवाट वो वहां से पिक कर लेगा, डिवाइडेड बाय 2 स्टार पाई, पाई के लिए PI और RPM इज N1, ब्रैकेट में लगाना पड़ेगा हमको ब्रैकेट, वेरी गुड, बहुत अच्छी, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, अदरवाइज वो 2 से डिवाइड करेगा, पाई और N1 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर, ठीक है। तो MT1 हमारे पास आ गया, जैसे ही हमारे पास MT1 आ गया, फिर हम फोर्स निकालते हैं, PT1 इज गिवन बाय 2 टाइम्स MT1 डिवाइडेड बाय D1। अब देखो MT1 वो यहां से पिक कर लेगा, D1 वो कहां से पिक करेगा, D1 तो हमने डिफाइन ही नहीं करा, तो इट विल गिव यू द एरर, यस सर, इट विल गिव यू द एरर। तो अब आप क्या करिए, D1 को डिफाइन कर दीजिए, इस लाइन से पहले डिफाइन कर दीजिए, यहां कहीं पर भी डिफाइन कर दीजिए, लेकिन इस लाइन से पहले डिफाइन करिए। तो चलिए इस लाइन से पहले हम यहां गिवन डाटा में डिफाइन कर देते हैं, तो D1 इक्वल टू M मल्टीप्लाई Z1, देखो M वो यहां से पिक कर लेगा, M इक्वल टू 4, Z1 यहां से पिक हो जाएगा, Z1 इज 20, तो D1 अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा, जब D1 हो जाएगा तो D1 यहां पिक हो जाएगा। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, PT1 आ गया, B2 भी कर दो सर ऐसे ही।
PT2 भी कर देते हैं, PT1 यही हो गया, PT2 भी यही हो जाएगा सेम, तो हम लिख देते हैं PT2, या अभी लिख देते हैं PT2 इक्वल टू PT1। ठीक है, अब PR1 निकाल लेते हैं, तो PR1 इज PT1 टेंजेंट ऑफ अल्फा। अल्फा के लिए क्या लिखना पड़ेगा, tan d अल्फा, tan d for degree, when the angle is in degree we have to use tan d, यदि रेडियन में होगा then d is not required, ये तो पता ही होगा आपको पहले से भी, है ना। So PT1 tan d for degree and this is the angle name is alpha, ALPH, तो अल्फा कहां से पिक हो जाएगा, यहां से पिक हो जाएगा, PT1 कहां से पिक हो जाएगा, यहां से पिक हो जाएगा, और इन दोनों के बीच में एक साइन आएगा स्टार का, PT1 tan के बीच में एक साइन आएगा PT1 मल्टीप्लाई, यदि आप इस मल्टीप्लाई को नहीं लगाएंगे देन इट विल गिव यू द एरर अगेन, सिंटैक्स एरर। कोई भी दो वेरिएबल होंगे तो उनके बीच में आपको कोई ना कोई ऑपरेशन दिखानी पड़ेगी, आप मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं, डिवाइड कराना चाहते हैं, प्लस करना चाहते हैं, माइनस करना चाहते हैं, जो भी, तो इनके बीच में आपको एक साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो PR1 आ गया, PR2 is PR1, so I think force analysis of the first and second gear is complete। कितनी लाइन है, फिनिश, लास्ट वाली लाइन नहीं दिख रही सर, लास्ट वाली, दिस वन, लास्ट वाला, हाँ लास्ट वाला को ऊपर लिख देते हैं ना, यहाँ लिखते हैं, देखिए मैंने लिखा है PR1 is PT1 multiplied tan d of alpha। PR1 का फॉर्मूला क्या है, PT tan alpha, PT1 पहले गियर पे काम हो रहा है, d for degree, alpha is in degrees, 20 degrees, not in radians, so that's why I have used d, tan d alpha, and PR2 is given by PR1, है ना। ये नीचे वाली लाइन मैंने रिपीट करके यहां से निकाला, मेरा से आपको विजिबल है, यस सर। so this step is complete, force analysis of gear 1 and gear 2 is complete। देखो कितना छोटा सा कोड बना है, 1 2 3 फिनिश। अब हम आते हैं स्टेप 2, फोर्स एनालिसिस ऑफ गियर 2 3 एंड 4, बस 1 और 2 की जगह कर देते हैं 3 एंड 4। तो दिस इज स्टेप नंबर 2, फोर्स एनालिसिस ऑफ गियर 3 एंड 4। चलिए कौन बताएगा इसका कोड, अब तो आपको आइडिया लग गया होगा ना, अब आप बताइए कैसे बनाएंगे, क्या लिखेंगे। सबसे पहले टॉर्क निकालेंगे, MT3 है ना, तो MT3 के लिए मैं थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूं क्योंकि MT3 में कोई ऐसा वेरिएबल हुआ जो मैंने डिफाइन नहीं करा है, तो उसको मैं पहले डिफाइन कर दूंगा, थोड़ी सी मैंने जगह बना ली है ना। सो आई एम राइटिंग MT3 ओवर हियर, M3 डिफाइंड नहीं है सर, हाँ तो वो कर देंगे 60 E6 into power divided by bracket 2 pi into N3, ये है ना। अब देखो किलोवाट तो डिफाइंड है, पाई तो कांस्टेंट होता है, ये N3 डिफाइंड नहीं, ठीक है। तो N3 को हम डिफाइन करें पहले, तो N3 कैसे डिफाइंड होगा, N3 इज गिवन बाय, क्या फॉर्मूला होगा N3 का बताओ, N3 इक्वल टू, बोलिए, N3 और N2 आपस में बराबर है, तो N3 इक्वल टू N2, N3 इक्वल टू N2, क्योंकि दोनों गियर सेम शाफ्ट पर हैं, तो आई कैन राइट N3 इक्वल टू N2। अब वो बोलेगा N2 डिफाइंड नहीं है, तो N2 के लिए फिर एक और फॉर्मूला लगा दो, N2 इज गिवन बाय N1 मल्टीप्लाइड बाय Z1 डिवाइडेड बाय Z2, हमने लिखा था ना N1 by N2 in Z2 by Z1, तो यहां से N2 का फॉर्मूला हो जाएगा N1 into Z1 divided by Z, N1 into Z1 divided by Z। बेटा से ठीक है, इज इट ओके? यस सर, यस सर। N2 डिफाइन हो गया, N2 में N1 ऑलरेडी डिफाइंड है 720, वो तो गिवन डाटा में यही है,
Z1 भी गिवन डाटा में डिफाइंड है, Z2 भी डिफाइंड है, N2 मिल गया, N2 यहाँ पे हो गया, N3 मिल गया, N3 यहाँ पे हो गया, पूरा सीक्वेंस है। ठीक है, तो MD3 आ गया। MD3 आते ही यू कैन फाइंड PT3 2 टाइम्स MD3 डिवाइडेड बाय D3। ठीक है, देखो MD3 यहां से पिक हो जाएगा। तो अब बताओ D3 कहां से पिक होगा? D3 तो डिफाइन किया नहीं आपने, ऊपर कर दीजिए। तो D3 को ऊपर कर देते हैं, यहां कर देते हैं। D3 is given by M multiplied by Z3। M गिवन डाटा से मिल जाएगा, Z3 भी गिवन डाटा से मिल जाएगा, बस अब कोई एरर नहीं आएगी, PT3 भी आ गया। ठीक है, अब PT3 निकल गया तो PT4 कितना होगा? सेम इक्वल होगा, तो PT4 is PT3। Similarly you can find PR3, so PR3 is given by PT3 multiplied 10D bracket alpha, 10D bracket alpha। ठीक है, PR3 आ जाएगा, PR3 के आते ही PR4 आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा PR4। डन। So this completes the force analysis of gear 3 and gear 4। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। अब इस प्रोग्राम को हम रन करें तो क्या हमारे आंसर्स आ जाएंगे? नो सर। नो सर। हमने हर लाइन के पीछे सेमीकोलन लगा रखा है ना, हमने आंसर को सप्रेस कर दिया है। तो अब हमारा लास्ट स्टेप आएगा प्रिंटिंग द रिजल्ट्स, प्रिंटिंग द रिजल्ट्स। तो दिस इज द लास्ट स्टेप, आई एम राइटिंग ओवर हियर। सो स्टेप नंबर 3, printing the output or the results। ठीक है, तो कौन सी कमांड होती है? F print F, ये आउटपुट के लिए कमांड होती है, कॉमा, एक और कॉमा, एक और कॉमा, वेरिएबल। बताया था सिंटेक्स मैंने पिछली बार, F print F का ये सिंटेक्स है, कॉमा 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 वेरिएबल, और इस कॉमा कॉमा के अंदर कहीं पे आएगा परसेंटेज डी, परसेंटेज डी। तो सबसे पहले टेंजेंशियल फोर्स करते हैं, तो चलिए मैं लिखता हूं टेंजेंशियल फोर्स ऑन गियर 1 एंड 2, दोनों का एक साथ लिख देते हैं, है ना, दोनों का एक साथ लिख देते हैं। The tangential force on gear 1 and 2 इक्वल टू, वैल्यू चाहिए, वैल्यू के लिए क्या लिखोगे? परसेंटेज डी, है ना, जो भी वैल्यू होगी 1657, जो भी हमारा आंसर आया था वो आंसर यहां प्रिंट होगा, परसेंटेज डी, और यूनिट क्या है? न्यूटन। एन, और कॉमा कर दीजिए बंद, कॉमा बंद हो गया। फिर एक छोटा कॉमा आया, छोटा कॉमा के बाद वेरिएबल का नाम, तो वेरिएबल का नाम क्या है? PT1 ब्रैकेट क्लोज। बताइए समझ में आया कि नहीं आया आपको? जब हम इसको रन करेंगे तो हमें स्क्रीन पे ये दिखेगा टेंजेंशियल ऑन गियर 1 एंड 2 इक्वल टू, यहां पे वैल्यू प्रिंट हो जाएगी किसकी? PT1। PT1 की वैल्यू जो भी कैलकुलेट हुई होगी हमारी प्रोग्रामिंग में, वो वैल्यू यहां पर प्रिंट हो जाएगी और यूनिट आ जाएगी। आई थिंक दिस इज क्लियर। PT1 हो गया। अब रेडियल फोर्स करना है, तो रेडियल फोर्स कर दीजिए, F प्रिंट F, बस टेंजेंशियल की जगह रेडियल कर दीजिए, बाकी पूरी लाइन सेम रखिए, सब कुछ सेम, परसेंटेज डी भी सेम, न्यूटन भी सेम, कॉमा भी सेम, ये कॉमा भी सेम, PT1 की जगह कर दीजिए PR1। सतीश क्या क्लियर है आपको? यस। ओके ओके गुड। तो बस अब इसके बाद आपने गियर 1 और गियर 2 का प्रिंट करा लिया, अब आप गियर 3 और गियर 4 का करा लीजिए। तो सेम ये दो लाइन रिपीट कर दीजिए, केवल 1 और 2 की जगह क्या आ जाएगा? 3 एंड 4। वेरिएबल का नाम क्या आ जाएगा? PT3, है ना, यहां पे क्या आ जाएगा? PR3। बस बात खत्म। सो दिस कंप्लीट्स आवर सेकंड एक्सपेरिमेंट ऑफ मशीन डिजाइन। फर्स्ट क्या था? डिजाइन ऑफ द हेलिकल स्प्रिंग। सेकंड क्या था? फोर्स एनालिसिस ऑन द स्प्रिंग।
ठीक है, तो मेरी तरफ से क्लास अब खत्म होती है। आपकी कोई क्वेरी है आइदर इन थ्योरी पार्ट आइदर इन द MATLAB प्रोग्राम, प्लीज आस्क। नो सर, क्लियर है सर। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वाचिंग, स्टे होम स्टे सेफ।